Hello, good morning everyone. Welcome me back in the topic trigonometry. Today, as well as even yesterday, I didn't take the formulae revision, but I request you all to revise your formulae because the video would go really very long. So we are taking few important and difficult questions today. That is from question number 9, as I have said yesterday. So today is the day only for question number 9. All the questions are difficult. Difficult in sense they are not lengthy. This is the only question which is lengthy, which you could see as the first one. But other questions are not that lengthy. These are very very simple, but still they are difficult to understand what to do. Okay, so let us initiate the question. Let's understand it. So first of all, the B question we'll discuss. LHS is 1 upon cosec A minus cot A minus 1 upon sin A. This is the LHS. I think when I look at the question, there is nothing to simplify as it comes to RHS. So I think I have to simplify LHS as well as RHS to give you the same answer. Then only this can be possible to solve. So let us see what can we do. So there are so many different options you could remember. Now here there is no identity, so you could directly cross multiply. That is one option you could remember, or maybe converting cosec and cot into sin and cos. You may be understanding as you can start, but all these are going to be really very wrong ways. Remember that. Then what is to be done? I'll give you a very simple idea. Let us understand. See, this particular one is a conjugate pair. Okay, so now let us understand what do you mean by conjugate pair. There are so many conjugate pairs. I'll tell you how to identify the conjugate pair. Sec theta plus tan theta is a conjugate pair. So whenever you find sec theta plus tan theta, or maybe sec theta minus tan theta, consider that this can be the conjugate multiplication question. Third one, cosec minus cot, same way, cosec plus cot or cosec minus cot theta, both are considered to be conjugate pair. Now why are they conjugate pair? Because if I multiply this by conjugate, I am going to get sec square theta minus tan square theta, which is going to be equal to 1. So when I multiply to this particular one by conjugate, I should get some identity, then we can call that as a conjugate pair. Okay, so same way, even if I take 1 plus sin theta or 1 minus sin theta is a conjugate pair, because if I multiply by that, it is going to become 1 minus sin square theta if I multiply by its conjugate, and that is equal to cos square theta. So that's the reason ये जो है ये conjugate pair है. Similarly, fifth one, 1 plus or minus cos theta is also a conjugate pair, which we have used yesterday. Sixth one, if I take sec theta plus or minus 1, or seventh one is cosec theta plus or minus 1. All these are considered to be conjugate pairs. So whenever you find anything out of these one, you can consider that is conjugate multiplication question. Okay, not every time, but 99% of the time this will be the conjugate multiplication question. So if you want to note it down, please note it down, the conjugate pairs, or else you understand after multiplying by conjugate you get a identity. Those all are considered to be conjugate multiplication question. Okay, chalo. So I'll just erase it because I need to solve the question there. Okay, so here you can see that the one part is conjugate multiplication, like this one, the first one. 1 upon sin is not of that category, not a conjugate pair, but this one surely it is a conjugate pair. So let us multiply by conjugate. So 1 upon cosec theta minus cot A. I will be multiplying this by cosec A plus cot A, only to that. ठीक है, cosec A plus cot A minus 1 upon sin A is cosec A. Is very clear. I hope you understand. Cosec A है ना, 1 upon sin A is cosec A. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. Now if I take this, it is cosec A plus cot A, and you know that denominator is cosec square A minus cot square A, which is 1, minus cosec A, which is left. This is upon 1, which I am not writing. ठीक है.
cosec get cancelled, and I'm getting a very simple answer. That is cot A. That's it. Let's talk about RHS now. RHS is 1 upon sin A minus 1 upon cosec A plus cot A, which I'm going to multiply by cosec A minus cot A, and as well as to the numerator cosec A minus cot A. ठीक है, done. So what do I get here now? 1 upon sin is cosec A minus of it is, right? Denominator is going to be of course 1, and the numerator will be minus of cosec A minus cot A. And if I open the upon 1, of course, which I am not writing, you know why it is upon 1. So cosec A minus cosec A plus cot A, and this get cancelled, and I am getting only cot A, and the answer is done. LHS equals to RHS, finished. So it's a simple thing. That's what I said. To understand what to do is the only thing important in this question. Same thing is next one. Next one is extremely important. I have given 3 star to it. Very, very important question. This question comes in multiple ways. All those ways we will be discussing while a revision. एक way बस मैं आपको समझा देता हूँ. एक one type of question I will be just explaining you. But other questions, all different type of this category question we will be discussing later on. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं. प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. I'll take LHS as equal to cot A plus cosec A minus 1 upon cot A minus cosec A plus 1. तो यहाँ तक तो वेरी सिंपल है, दिखने के लिए बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि करना क्या है. तो करना ये है, यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है, ये जो 1, इस 1 को आई एम राइटिंग इट एज 1 एज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A minus cot square A. I hope I can write that, isn't it? Cosec square A minus cot square A is equals to 1. So this 1 I can write as that. Now you might say that there is another 1 here in the denominator. That also I can write as cosec square A minus cot square A. But see, as on to prove the required result, I have to just make one of the two 1 as a cosec square A minus cot square A. Okay, so let's do that. That's the reason these questions are different. क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे है, इट हैज़ गॉट अ टिपिकल ट्रिक टू सॉल्व इट. ओके, कोसेक ए, वंस यू नो दैट देन इट इज ईजी. नाउ आफ्टर दैट इट इज सिंपल. तो 1 आई राइट इन द ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर इज लेफ्ट सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. यहाँ तक तो समझ में आ गया. Now what I'm going to do, let us see, cot A plus cosec A minus of, this is A square minus B square. See, I cannot write that as again 1, otherwise it's useless doing that. So I'll write this as A square minus B square as cosec square A plus B into A minus B, cosec A plus cot A into cosec A minus cot A, and is being divided by the same thing, cot A minus cosec A plus 1. देखो कुछ नहीं किया है, बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी एंड a माइनस बी में डिवाइड किया. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग. आई विल राइट दिस एज दिस इन द ब्रैकेट, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी द न्यूमरेटर इज एज हैविंग दो टर्म है. वन इज दिस कंप्लीट टर्म, ये जो दिख रहा है फर्स्ट टर्म कंप्लीट, एंड सेकंड इज दिस कंप्लीट टर्म, ये जो दिख रहा है कंप्लीट टर्म. ठीक है, सो नाउ आई कैन सी cosec A plus cot A, and here also cosec A plus cot A, which can be easily taken common from both. Now that's the important step here. So cot A plus cosec A I can take common, and what is left inside the bracket I'll write here. What is left inside the bracket, let us see. In place of this term everything is gone out, so 1 is left, minus of cosec A minus cot A is left inside the bracket, and denominator remains same, cot A minus cosec A plus 1.
क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. cot A plus cosec A, I'll keep as it is the bracket, and what is there in the square bracket, I'll just write it in the proper order. 1 minus cosec A plus cot A, and the denominator is cot A minus cosec A plus 1. Now look at the magic. This bracket which is in the denominator and the bracket in the numerator are same, so they get cancelled. Check it out. Sign, you have to look at the sign. They may not look same, but look at the sign, you will understand. Cot A plus 1 minus cosec A, all signs are same. So almost my question is done now. It is left cot A plus cosec A, which can be equal to cos A upon sin A plus 1 upon sin A. Cosec A is 1 upon sin A, and which is cos A plus 1 upon sin A, and that is the RHS. You can check here. Finished. That's it. Clear? Getting it? So you can watch the video again and again in case if you are not understanding, because the question which I am taking now after this is extremely big question. So for that it will take a lot of time. So if you are not understanding this, you can watch the video again. Still, if you are not understanding, you can surely send simple comment okay, you did not understand it. I will try to put another video for the same. Don't worry. चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. एक काम करो, वो 2 क्वेश्चन जो हमने अभी भी किए वो कंप्लीट करो और फिर आ जाओ वीडियो के पास. ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सॉल्यूशन आई मीन टू से. तो चलो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, तो एवरीवन आई वांट यू ऑल टू प्रॉपरली फोकस हियर. तो सबसे बेसिक थिंग दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज टू अंडरस्टैंड दिस. देखो, इफ आई टेक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया. देखो जैसे हम लोग माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं वैसे माइनस साइन को कॉमन भी निकाल सकते हैं. तो व्हेन आई टेक माइनस साइन कॉमन, व्हाट विल हैपन, साइंस विल चेंज सेम वे लाइक व्हेन आई गिव माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट. तो साइंस विल चेंज. तो साइन थीटा का साइन है प्लस, इट विल बिकम माइनस, एंड कॉस थीटा का माइनस है, दैट विल बिकम प्लस. तो ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. मतलब क्या हो जाता है, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये उल्टा हो जाता है. याद रखो इस चीज़ को. तो व्हेन आई टेक माइनस साइन कॉमन और व्हेन आई मल्टीप्लाई माइनस साइन इनसाइड, अभी इसको माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो भी वही होगा. ये जो इनसाइड है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये जो है रिक्वायर्ड है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मैं हर एक स्टेप अलग अलग कलर से करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो डायरेक्टली मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ. करना क्या है इस क्वेश्चन में, आई कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. ओके, इफ यू डोंट कन्वर्ट दैट इनटू साइन एंड कॉस, इफ यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट. तो रिमेंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई और कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. If you have done in the school, you must have understood that how big the question is, है ना. Cot theta is cos theta upon sin theta whole divided by 1 minus sin theta upon cos theta. ठीक है, कलर चेंज. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. ये तो पहली स्टेप हो गई. अभी करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. न्यूमरेटर लेट इट बी एज इट इज. तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. देखो ठीक से अंडरस्टैंड करो. प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. यहाँ तक तो समझ में आ गया. नाउ आई हैव टू चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर. दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ. ठीक है, चलो.
तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ। उल्टा हो जाएगा तो रफली करके देखो, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। देख लो ठीक से। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया मतलब 50% वर्क इज डन। अभी नेक्स्ट 50% वर्क, मतलब यहाँ से अलग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक से देखो, अभी कलर को मैं चेंज करता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच स्टेप प्रॉपरली। चलो देखो, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो यहाँ पे एक तो साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो कैन आई राइट और कैन आई कन्वर्ट दिस एज साइन माइनस कॉस? इसको उल्टा कर सकता हूँ। मैंने अभी भी बताया था कि उल्टा कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करती है कि हाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, वो तो मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस यहाँ पे करता हूँ, जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा उल्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? गॉट इट? तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखो ये तो सेम आ गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाउ अबाउट साइन एंड कॉस? यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो फ्रैक्शन है उसको मैं कॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन में करते हैं, है ना। तो इजंट इट, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, ये भी हो जाएगा साइन इंटू कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। तो समझ में आ गया? तो वो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस है अभी देखो बीच में कॉस क्यूब थीटा। अभी कॉस क्यूब की थीटा क्यों? क्योंकि कॉस से मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम ही रहेगा, जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब समझ में आ गया आपको? अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, हो गया आपका सम, दैट्स इट। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, और वो भी सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? न्यूमरेटर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी 9th स्टैंडर्ड में वी हैव डन दैट। ओके, 9th में ये आइडेंटिटी की हुई है, तो यू नो दिस आइडेंटिटी वेरी वेल कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं पता? याद कर लो, याद कर लो, अभी याद कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल इज बिन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी देखो ये मैजिकली कैंसिल हो गया। तो नाउ व्हाट वी हैव, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें देखो ठीक से कोसेक एंड कोसेक है तो सेपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर है ना। तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, इट इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, फिर से वीडियो देखो और एक बार देखो, समझने की कोशिश करो। वेरी स्लोली, वेरी कामली दिस क्वेश्चन इज बीन एक्सप्लेन टू यू। ईच एंड एवरी स्टेप यू मस्ट अंडरस्टैंड, देन ओनली यू विल रिमेंबर दिस। ओके, टेक्स्ट बुक का ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में आप देख सकते हो, लास्ट वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है, ये वाला क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक का ही, जिसमें 1 को इंटरचेंज करना था। ठीक है, तो ट्राई टू कंप्लीट दिस all the 3 questions, very very important. Okay, for your any examination after this of trigonometry, these 3 questions are extremely important. You have to do this first and then the other questions of the trigonometry. ठीक है, anyway, तो यहाँ तक मैं ये कॉन्सेप्ट स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक कुछ काम दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, आई जस्ट फाउंड ईजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से मैंने ईजिएस्ट क्वेश्चन निकाले और ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं खुद से। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज 3 क्वेश्चंस, यू ऑल विल बी ट्राइंग दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू डू इट। ओके, खुद का थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो, चेक करो वेदर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट, चेक करो वेदर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। ओके, इफ यू आर एबल टू इवन सॉल्व एनी वन आउट ऑफ दिस 3, even one, I'm saying even one out of these 3, then you all are developing in trigonometry, you can say that. If you're not able to solve any of this question, that means algebra में problem है, आपका algebra अच्छा नहीं है, and that's the reason that will create a problem in trigonometry. Always remember that. So algebra को develop करना ज़रूरी है। देखेंगे, नहीं आया तो मैं सॉल्व करने ही वाला हूँ, डोंट वरी, हम 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर खुद से आएगा, इट विल बी ग्रेट वर्क देन, ग्रेट वर्क। ओके, ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क के लिए, सेम ही है क्वेश्चन बेसिकली। एक आ गया, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये है 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ट्राई करो, सॉल्व करो और मुझे सेंड करो इफ़ यू कुड सॉल्व इट। ठीक है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर सेंडिंग द क्वेश्चन टू मी, और एल्स कमेंट करो कि मुझे नहीं आया। फाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।